Students, is my Good voice morning, clear ma'am. to you? Good morning, ma'am. Good morning. Voice clear है बच्चों? Yes, ma'am. So as you all know, last time we have read chapter number 2, है ना? Yes, ma'am. The tsunami. कंप्लीट हो गया था चैप्टर? बताइए आयास, Yes, ma'am. चैप्टर कंप्लीट हो गया था सुनामी? Yes, ma'am. नहीं हुआ था। पेज नंबर 29 पर बिफोर द जाइंट वेव्स से रीड करना स्टार्ट करिए। Yes, ma'am. Before the giant wave slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety. Accord- According to every eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. They can sense an approaching disasters long before humans realize what's going on. We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats, and dogs were found unharmed. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards, and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the Patanangala beach inside the park, but no animal carcasses were found, except for two water buffaloes. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed three elephants running away from the Patanangala beach. A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galle said his two dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on these outings, he said. But on the day they refused to go and most probably saved his life. So this is how you start calm blue sea ruined hut. So पूरे मतलब जो शांत सा हमेशा एकदम काम रहने वाला शांत रहने वाला जो ब्लू सी है उसने कैसे रून कर दिया, सबको नष्ट कर दिया, हट्स यानी कि लोगों को और उनके जीवन को। जैसे बिफोर द जायंट वेव स्लैम इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, जो जायंट वेव्स थी, जो बड़ी बड़ी वेव्स थी सी की, वो उन्होंने जब श्रीलंका और इंडिया के कोस्ट को हिट किया, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। आपने सुना होगा कि जो एनिमल्स होते हैं, डॉग्स और एनिमल्स जो होते हैं,
उनको पहले से कुछ ना कुछ ऐसा अंदाजा हो जाता है कि क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनको किसी दुख का अंदाजा पहले से हो जाता है। सो जो डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स थे, ऐसा लग रहा था कि seem to know what about to happen, उनको पता था कि क्या होने वाला है। दे fled to safety, और वो लोग सेफ्टी के लिए, वो लोग अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेसेस अकाउंट, एलिफेंट screamed and ran for higher ground, और जो वहां के आई विटनेस थे जिन्होंने वो सब चीजें देखी थी अपनी आंखों से, वो बताते हैं कि जो एलिफेंट्स थे वो वेव्स के आने से पहले ही ग्राउंड छोड़कर ऊपर की तरफ जाने लगे थे बचने के लिए। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और जो डॉग्स थे वो बाहर जाने से मना कर रहे थे, रिफ्यूज कर दे रहे थे। फ्लेमिंगोज abandoned their low-lying breeding area, जो फ्लेमिंगोज थे वो लोग भी, उन्होंने जो बाहर नीचे जो जब वो जाते थे, लो लाइंग यानी कि नीचे जाकर जहां पर वो लोग रहते थे वहां पर जाने से भी उन्होंने मना कर दिया। एंड जू एनिमल्स rushed into their shelters and could not be enticed to come back out, और दोबारा जो जू के एनिमल्स थे वो भी अपने शेल्टर्स में जा रहे थे, मतलब वो लोग भी अंदर की तरफ जा रहे थे, शेल्टर्स में अपने आराम से जा रहे थे, उन्होंने भी बाहर आने से मना कर दिया। मेनी पीपल बिलीव दैट, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एनिमल्स पोजेसेस अ सिक्स्थ सेंस, कि एनिमल्स के पास एक सिक्स्थ सेंस होती है, एंड टू नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। तो जैसे हमारी फाइव सेंसेस होती है वैसे ही एक सिक्स सेंस मानी जाती है, जो दिखती नहीं लेकिन लोग मानते हैं कि उससे लोगों को या किसी को भी आभास हो जाता है, एक्स्ट्रा कुछ उसमें पावर होती है। तो लोगों का ये मानना है कि एनिमल्स के पास कुछ सिक्स सेंस होती है कि उनको पता चल जाता है कि अर्थ कब शेक होगी या कुछ भी ऐसा कब वो लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth vibrations, और बहुत सारे experts ये कहते हैं कि animals जो होते हैं उनको extra vibrations feel होती है, मतलब अगर अर्थ के अंदर कुछ भी ऐसा होता रहता है तो वो उनको पहले से फील हो जाता है। और दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, और अगर कोई डिजास्टर होने वाला है, कोई बड़ा ऐसा कुछ घटना होने वाली है, तो उनको लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, इंसानों को पता चले उसके बहुत पहले ही एनिमल्स को पता चल जाता है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, हम ये श्योर तो नहीं हो सकते हैं कि उनके पास कोई सिक्स्थ सेंस होती है या नहीं, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries. तो सच्चाई जो फैक्ट है, जो आंकड़े हैं वो ये है कि इंडियन ओशन के आसपास की जितनी जगह थी कंट्री में, वहां पे और दूसरी जो आसपास की कंट्रीज थी जहां जहां ये जो सुनामी थी इसका इफेक्ट था, वहां पर 1,50,000 तक के लोग जो थे वो उनको डेथ हो गई उनकी। बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन जितने इंसानों की डेथ हुई उतने ज्यादा एनिमल्स का नाम नहीं आया, कि उनका कोई ऐसा काउंटिंग नहीं हुआ कि इतने ज्यादा एनिमल्स की डेथ हुई। अलोंग इंडियाज Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs. तो पेरिस्ड का मतलब है यहाँ पर कि डेथ हो गई, मारे गए। सो इंडिया के कडलोर कोस्ट के पास जहां पर हजारों लोग की डेथ हुई, बफेलो, गोट और डॉग वर फाउंड अनहार्म्ड, मतलब लोगों की तो डेथ हो गई लेकिन बहुत सारे ऐसे बफेलोज थे, गोट्स थी, डॉग्स थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ था, वो बच गए थे। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका is home to a variety of animals. याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में एक, वहां पर बहुत सारे वैरायटी के एनिमल्स पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग एलिफेंट, लेपर्ड एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। 60 वैरायटी विजिटर्स वर वॉश्ड अवे, मतलब 60 विजिटर्स जो वहां पर आए थे घूमने के लिए, उनको लहरों ने बहा लिया था फ्रॉम द पटनांगला बीच,
inside the park, but लेकिन नो एनिमल केयर केसेस, मतलब एनिमल्स की जो डेड बॉडी थी वो किसी को नहीं मिली, वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। सिर्फ 2 वाटर बफेलोज थी जो कि डेड पाई गई थी, बाकी 130 लोग डेड थे, लेकिन किसी भी जानवर को कुछ नहीं हुआ था। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, सुनामी के हिट करने के 1 घंटे पहले तक people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from Patanangla beach. So लोगों ने देखा था कि 3 एलिफेंट्स हैं जो पटनांगला बीच से दौड़ कर जा रहे हैं। सोचो, उनको 1 घंटे पहले से ही ये सेंस हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है और वो वहां से दौड़ कर जा रहे थे। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galley said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. तो वहां पर उसी बीच पर रहने वाला एक जेंटलमैन था श्रीलंका का, उसने ये बताया, मतलब उसने खुद के एक्सपीरियंस से बताया कि डेली मेरे डॉग्स और मैं बीच पर वॉक करने के लिए जाते थे, लेकिन सुनामी वाले दिन मेरे डॉग्स ने रिफ्यूज कर दिया जाने से। They are usually excited to go on this outing. वैसे तो यूजुअली वो लोग बहुत एक्साइटेड रहते थे वॉक पर जाने के लिए, लेकिन उस दिन उन्होंने डिनाई कर दिया। He said, उसने बताया, but on that day they refused to go and most probably saved his life. और इसी तरह से जो एनिमल्स, जो डॉग्स थे, वो खुद भी नहीं गए, अपनी भी जान बचाई और उन्होंने मेरी भी जान बचाई, मतलब अपने मालिक की भी जान बचाई और खुद की भी जान बचाई बीच पर ना जाकर। सो दैट इज इट, आपका ये चैप्टर है यहीं से एंड हो गया है। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस, जो हमने आपको बताया है उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस है, इनका आंसर बताइए। Why did Tilly's family come to Thailand? बताइए, टिली की जो फैमिली थी वो थाईलैंड क्यों आई थी? बताइए, अनुराग, आयास, रुद्राक्ष, पूरा पूरा हमने चैप्टर आपको बताया है, आपने भी रीड किया है। हाँ मेरे पास बुक्स नहीं है बेटा, बुक नहीं है तो हमने एक्सप्लेन तो किया है ना आपको, स्टोरी की तरह तो सुना है आपने। तो टिली जो थी उसकी फैमिली क्या करने आई थी? क्रिसमस मनाने आई थी ना बीच पर, भूल गए? वो लोग सब लोग एक रिसोर्ट में आए थे बीच पर क्रिसमस मनाने के लिए। जब उनको टिली को जब पता चला कि सुनामी आ सकती है, क्यों? क्योंकि उसने ज्योग्राफी का लेसन किया था एक 1 वीक पहले। 1 वीक पहले इंग्लैंड में जब वो थी तब उसने एक ज्योग्राफी के लेसन में ये सारी चीजें देखी थी कि एक सुनामी जब आती है तो क्या क्या उसका पहले से जो इफेक्ट होता है वो दिखता है। तो उसने अपने सारे फैमिली वालों को अलर्ट किया था, तभी तो सबकी जान बची थी। yes So Tilly's family had to come to Thailand to celebrate Christmas. Christmas. So the next question is, what were the warning signs that both Tilly and her mother saw? कौन कौन से ऐसे वार्निंग साइंस थे जो कि टिल्ली और उसकी मदर ने एक्सपीरियंस किया था? बताइए। जब सुनामी आती है तो सी के अंदर, सी में क्या दिखता है, क्या दिखाई देता है कि पता चल जाता है कि अब कुछ डेंजर होने वाला है? करेक्ट। तो टिली और उसकी मदर ने both saw the sea rise and it started to form whirlpools. उन्होंने देखा कि जो सी है वो राइज कर रहा है, उसकी वेव्स जो है वो राइज कर रही हैं एंड उसका जो फोम है, बता देना, झाग और बुलबुले पानी में दिख रहे थे। The third question is, do you think Tilly's mother was alarmed by them? तो नो, टिलीज मदर वॉज नॉट अलार्म्ड बाय देम। टिली की मदर को नहीं समझ में आ रहा था कि ये सुनामी है जब तक टिली ने नहीं बताया। सो वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच
गो टू एस्केप, बचाव के लिए वो लोग कहाँ गए? फ्रॉम द सुनामी, बताइए। वो लोग रिजॉर्ट के रूफ पर गए थे ना, थर्ड जो Yes, स्टोरी, जो रिजॉर्ट का जो थर्ड मंजिल था उस पर वो लोग जाकर बचे थे। और चैप्टर में ये भी बताया गया है कि रिजॉर्ट का जो बिल्डिंग था उसने पूरी सुनामी की जो वेव थी उसको बेयर कर लिया था, उसको सह लिया था। yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, where had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion? और टिली ने जो सी का जो बिहेवियर था, यानी कि सी में जो चीजें हो रही थी उसको उसने पहले कहाँ पर देखा था, कैसे वो उसको पता था? मैम उसने ज्योग्राफी में पढ़ा था लेसन में। हाँ, ज्योग्राफी में पढ़ा था। और उसने कुछ ऐसे, टिली हैड सीन द स्ट्रेंज सी बिहेवियर इन अ वीडियो, उसने बताया था कि ज्योग्राफी के लेसन में उसने उसको टीचर ने बताया था और उसने एक वीडियो में भी देखा था कि जब सुनामी आती है तो क्या क्या चीजें सी में होती है। नेक्स्ट है, वेयर डिड, हाउ डू यू थिंक her geography teacher felt when he heard about what Tilly had done in Phuket? तो ज्योग्राफी टीचर मस्ट बी प्राउड ऑफ हर, है ना, कि उसने Yes, जो ma'am. उसको बताया वो उसको याद था, उसने अपने माइंड का यूज करके लोगों की जान बचाई। फिर Yes, ma'am. हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डायड इन याला नेशनल पार्क? तो याला नेशनल पार्क में 130 लोग थे। कितने लोग की डेथ हुई थी याला नेशनल पार्क में? 130. नहीं नहीं, 60 विजिटर्स एंड 2 एनिमल्स। जो पार्क था उसमें 60 विजिटर एंड 2 एनिमल्स। सो व्हाट डिड द डॉग्स इन गैले डू? तो डॉग्स ने रिफ्यूज कर दिया था बीच वॉक पर जाने से। Yes. और जो व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क? याला नेशनल पार्क के एनिमल्स के बारे में लोग क्या बता रहे थे कि सुनामी वाले दिन वो लोग क्या कर रहे थे, बताइए। कि बहुत कम एनिमल्स की डेथ हुई और ज्यादातर जो एनिमल्स थे वो ऊंचाई पर चले गए थे, है ना, उनको पहले से ही फेल्ट हो गया था जो वहां पर होने Yes, वाला ma'am. था। तो बच्चों इसकी जो एक्सरसाइजेज है वो आप लोग कर लोगे। जो इसके क्वेश्चन आंसर्स है और एक्सरसाइजेज है ये होमवर्क में आपको मिलेगा, तो आप लोग कर लोगे ना खुद से? Yes, ma'am. हाँ, और ये जो इसका एक्सप्लेनेशन था ये हमको लिखाना था, अभी तक हमने लिखाया नहीं है। Yes, ma'am. मैम कॉपी में सुनामी चैप्टर का क्या क्या करना है? सिर्फ क्वेश्चन आंसर? नहीं नहीं, एक्सरसाइजेस भी करनी है, क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं और वर्ड मीनिंग मेक सेंटेंस भी करना है हार्ड वर्ड के साथ। आपको होमवर्क दिया जाता है ना, रोज सेंड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉपी में काम करते रहना है। जहाँ जो चीज ना समझ में आए, जो एक्सरसाइज जो भी चीजें ना समझ में आए उसको आप क्लास में पूछिए तो हम उसको बोर्ड पर करा देंगे। मैम सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर कॉपी में कर लेना है ना? फर्स्ट, हाँ बिल्कुल करना है, उसको पढ़ा चुके हैं ना सप्लीमेंट्री का, पढ़ाया है कि नहीं? हाउ द कैमल गॉट हिज बम और चिल्ड्रन एट वर्क। तो चिल्ड्रन एट वर्क अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कंप्लीट हो गया था चैप्टर। यस मैम। हाँ, तो इसका भी कर लेना है। जो जो चीजें होमवर्क में दी गई है आपको सेंड जो होता है उतना ही करिएगा, एक्स्ट्रा करना है तो कर लीजिए, लेकिन होमवर्क में जिस डेट पे दिया जा रहा है उस डेट पर काम होना चाहिए। मैम और होमवर्क वाला मैम हाँ, होमवर्क वाला डाउनलोड नहीं हो रहा है अब। डाउनलोड नहीं हो रहा है, व्हाट्सएप पे नहीं मिल रहा है क्या आपको? मैम पहले आया तो डाउनलोड नहीं हुआ था, फिर बाद में कर रहे तो डाउनलोड फेल्ड हो जा रहा है।
हाँ, इसलिए recent फेल्ड हो जा रहा है क्योंकि वो आपका व्हाट्सएप जो था आपने दोबारा से उसको इंस्टॉल किया होगा, है ना, पहले वाला जो था उस पे नहीं गया वो चीज, ऐसा ही कुछ हुआ है। नो मैम, वो कई दिन से पड़ा था, हमने डाउनलोड नहीं किया था ना उसको, इमेज को, हाँ हाँ इसीलिए हाँ, वही। तो वो एरर आ गया है। तो जो आपके फ्रेंड्स हो जिनके पास होमवर्क हो उनसे पता करके उनसे ले लीजिएगा। यस मैम। अब नेक्स्ट पोएम देखिए क्या है, ज्योग्राफी लेसन। रीड करो इसको कोई। यस मैम। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography, that the land and water attracted man, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it has more sea than land. But it was difficult to understand that the man and the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why. Zulfikar Ghosh. So, geography lesson. Can you imagine that your city would look like if you saw it from 10,000 feet above in the ground? जब आप 10,000 फीट ऊपर जाओगे ग्राउंड से, तब आपका जो जहां पर ये आप रह रहे हो, जो आपकी सराउंडिंग्स है, वो कैसे दिखाई देगी ये आप इमेजिन कर सकते हो, तो समझ में आएगा। नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन proportion like a geometric design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. जब आप ऊपर से अपने ही सराउंडिंग्स को देखोगे, अपने ही आसपास के एरिया को देखोगे, तो जैसा आपको नीचे से दिखाई देता है वैसा बिल्कुल भी ऊपर से दिखाई नहीं देगा। ऊपर जब आप जाकर देखोगे तो आपको लगेगा कि जहां पर वाटर है, जहां पर मकान है, जहां पर गार्डन है, तो वो सब चीज एकदम एक मैप की तरह दिखाई देगा। वो आपको एकदम सिस्टमैटिक ढंग से दिखाई देगा कि कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। सो लेट्स रीड दिस पोएम। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. जब जो पोएट है जुल्फिकर घोष, जो पोएट है, उनका जो जेट है, जो उनका एयरक्राफ्ट है, वो जब ऊपर गया तब उनको जो स्काई से जो व्यू दिखाई दे रहा था वो एकदम क्लियर था। पूरी सिटी उनको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही थी। had developed that the way it had, उनको तब पता चला कि जो सिटी है वो उस तरह से डेवलप की गई है जैसा कि उसको होना चाहिए। Seeing it scale 6 inches to the mile, there seemed inevitably about what ground had looked haphazard, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky. हैप्जार्डेड का मतलब है कि हैप्जार्ड का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब, मतलब जिगजैग जैसे वे नहीं होता है कि एक चीज इधर है दूसरी इधर है, तो ऐसा लग रहा था कि जो घर है वो एकदम अनप्लैंड है, बिल्कुल इधर उधर से ऐसे कहीं पर भी घर है, और कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही थी जो when the jet sprang into the sky, जब जेट ऊपर चला गया ना तब कई सारे ऐसी चीजें दिखाई दे रही थी जो नीचे से देखकर जो फील नहीं होता है, वो ऊपर से पूरा एक मैप दिखाई दे रहा था। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran. जब 10,000 की ऊंचाई पर गया जेट, तब ये समझ में आ गया
कि क्यों लोग नदी के किनारे अपने घर बनाते हैं। सो हैड सिटीज वेयर द रिवर्स लैंड, क्यों शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। एंड व्हाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो वैलीज है, जो घाटियां है, मतलब जहां पर जो नीचे की जमीन है वहीं पर ज्यादातर लोग क्यों आकर रहते हैं, पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा क्यों है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, और ये सब का पूरा लॉजिक जो है किससे रिलेट करता है, ज्योग्राफी से। मतलब जो सिटी है, जो जो लोग हैं और रिवर के पास जो घर ज्यादा बनाए गए हैं, वो सब कुछ ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। That land and water attracted man was clearly declined. Declined मतलब दिख रहा है, शो हो रहा है कि जो लैंड होता है, जो जमीन होती है, जो मैदान होता है, और जो वाटर होता है, नदी होती है, यही दो चीजें इंसान को अट्रैक्ट करती हैं। आप देखोगे कि जो घाटियां, आप अक्सर देखो जो पहाड़ी इलाके होते हैं, हिमाचल चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, जो पहाड़ी जो इलाके होते हैं, वहां की पॉपुलेशन और यहाँ की पॉपुलेशन, जो हम लोग मैदान में रहते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ज्यादातर पॉपुलेशन जो होती है वो मैदानी इलाकों में होती है। जहां पर हम रह रहे हैं, जो मैदानी इलाका है, वहां पर कितनी पॉपुलेशन होगी बताइए, प्रयागराज की पॉपुलेशन कितनी हो सकती है। मैम 6 लाख 7 लाख। नहीं बेटा, प्रयागराज अगर सिटी की आप बात करेंगे तो 6-7 करोड़ तक यहाँ की पॉपुलेशन होगी। और अगर आप किसी एक हिल स्टेशन की बात कर लो, आप अक्सर देखोगे जब कोई गया भी होगा अगर घूमने आप में से, या फिर आपने अगर टीवी पे देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, तो वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है पहाड़ों पर। वहां की जो रोड होती है बड़ी पतली पतली सी रोड होती है, मतलब हिल्स को कट कर करके वहां की रोड बनाई जाती है, मार्केट्स बनाए जाते हैं, काफी ऊपर ऊपर जाना पड़ता है। तो वहां की पॉपुलेशन तो कम ही रहती है। लेकिन आप अगर यहाँ की बात करोगे, नदियों के किनारे, जो जैसे हमारा गंगा नदी के बगल में ही है हमारा शहर, और पूरा जो ये हमारा सिटी है वो घाटी में ही है, वो मैदान ही उसको कहा जाएगा। सो वहां की पॉपुलेशन देख लो कितनी ज्यादा है। तो इंसान को, तो पोएट यही कह रहा है कि इंसान को, जो ह्यूमन बीइंग है, इनको रिवर जो होता है, वाटर, और जो वैली होती है वो बड़ी अट्रैक्ट करती है, उनके लिए बड़ा आसान होता है। क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर फार्मिंग करना बहुत इजी है ना, कोई भी काम है वो इजी, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। When the jet reached 10,000 feet, so when the jet rose 6 miles high, उसके बाद 6 miles और high गया, it was clear the earth was round। और ऊपर गए तो दिखता है कि जो लोग कहते हैं ना कि अर्थ राउंड है, राउंड है, अभी तो हमें पता नहीं चल रहा अर्थ कैसी है, लेकिन आप जब बहुत ऊपर जाओगे जेट से, तो तब ये भी क्लियर आपको दिखाई देगा कि क्यों लोग कहते हैं कि अर्थ जो है वो राउंड शेप में है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और तभी आपको पता चलेगा कि जो लोग कहते हैं ना 70% सिर्फ वाटर है, तभी आपको दिखाई देगा कि हाँ सच में पानी का एरिया बहुत ज्यादा है लैंड से। But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height, it was not clear why. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है पोएट का, जुल्फिकर घोष का, कि सब कुछ तो दिखाई देता है इतनी ऊपर से, अर्थ का पूरा ज्योग्राफी दिखाई देता है, लोग क्यों घाटियों में रहते हैं ये दिखाई देता है, ये समझ में आता है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इतना सुंदर जो ज्योग्राफी हमको नेचर ने प्रोवाइड किया है, गॉड ने दिया है, इसको पाने के बाद भी जो ह्यूमंस होते हैं वो आपस में सिटीज में दीवारें बना देते हैं, लड़ाई करते, एक दूसरे को किल कर देते हैं। आपने सुना होगा न्यूज में कि बॉर्डर के लिए कितनी लड़ाइयां होती हैं, अभी भी आज के टाइम पे भी जो बॉर्डर वाली जो कंट्रीज है, मतलब जो एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं, वो जगह के लिए, जमीन के लिए अभी भी एक दूसरे को किल कर रहे हैं, अभी भी झगड़े कर रहे हैं, स्ट्रेस बना हुआ है। तो पोएट इसी बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि बस यही रीजन अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों इंसान एक दूसरे का इतना दुश्मन है, और क्यों लोग एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं। और इतना सुंदर जो ज्योग्राफी ऊपर से दिख रहा है, इतना सुंदर जो नेचर दिख रहा है, सिटी दिख रही है, अंदर से जो दीवारें बनाई गई हैं, जो अलगाव, जो डिफरेंसेस है, वो क्यों है। सो ये आपकी पोएम थी ज्योग्राफी लेसन। समझ में आया बच्चों? यस मैम। चलो, ये इसको पोएम में से एंड करते हैं। इसका भी जो देखो यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, इनवेटिबल,
हैप्जार, डिक्लिनेटेड, ये सारा जो मीनिंग है इसको देख लीजिएगा, और जब होमवर्क मिलेगा तब इसके आगे की चीजें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलो, थैंक यू ऑल, बाय बाय। मैम एक्सप्लेनेशन कल कराएंगे? थैंक यू मैम। एक्सप्लेनेशन हाँ फर्स्ट वाली पोएम का पहले करा देंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद जो सेकंड पोएम है उसका करा देंगे, ठीक है। आप लोग याद दिलाइएगा कि नेक्स्ट क्लास में हमको एक्सप्लेनेशन करना है पोएम का, ठीक है। यस मैम। चलो, थैंक यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू मैम।